मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बचे हुए क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और हमारा रिलेटिव वेलोसिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं शिप की प्रॉब्लम, शिप या एरोप्लेन की प्रॉब्लम। इन दीज प्रॉब्लम्स वी हैव two moving objects, maybe ship or maybe trains, maybe aeroplanes. For example, here ship A is moving in west direction with 10 km per hour, and ship B 100 km south of A is moving northward with 10 km per hour. Find time after which a distance between them will be minimum. So this is quite confusing language, so have a pencil in your hand and first draw east, west, north, south. If you have drawn east, west, north, south, then draw the diagram which can make the event clear, that actually what is happening in the question. So if I draw east, west, north and south here, and then I'll draw as they are saying. They are saying ship A is moving west direction, in west direction. Ship A is moving in west direction with 10 km per hour, and ship B 100 km south of A. So first you can draw a rough diagram and then you can draw a second proper diagram. If in first go you are not able to make the correct diagram, doesn't matter. But as I have drawn it, when you come to know that B is 100 km south of A, then you draw A at the top of the diagram and 100 meters down south of A. So this is 100 meters distance and B is towards the south of A. So here is B. Then they are saying that ship B, which is 100 kilometers south of A, is moving in north direction. B is in south direction of A, but it is moving in north direction. So this is 100 kilometers and it is moving towards north with 10 km per hour. Now find time after which distance between them will be minimum. Famous questions when the distance between two moving objects will be minimum. And whenever two objects are moving, use relative velocity concept. Sit as an observer on one object and observe the second object. For example, we can sit on A, we can sit on B. So if we choose to sit on B, then sit on B. As soon as you will be on B as an observer, B with respect to you, relative to you, will come at rest. We have discussed why the observer, when sits on a frame, that frame comes to rest for the observer. We discussed it in the previous classes. So if anybody is not able to understand it, they can go to the previous classes of the relative velocity and then come back to the topic. So as soon as you sit on B, B is at rest. Now observe A. This is ground frame. Ground frame में A कैसे जाता दिख रहा है? वेस्ट साइड में. B कैसे जाता दिख रहा है? नॉर्थ की ओर. तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो डायग्राम है ये ग्राउंड फ्रेम में है. अब जब हम B पर बैठ गए, B रेस्ट पर आ गया, तो ऑब्वियसली जब हम B पर बैठ गए तो अब A हमको वैसा नहीं दिखेगा जैसा ग्राउंड पे खड़े होने पे दिख रहा था. ग्राउंड पे खड़े होने पे B इधर जाता दिख रहा था, A इधर जाता दिख रहा था. अब हम B पर बैठ गए तो अब हमें A कैसे बिहेव करता लगेगा. तो ये पॉइंट्स मैंने जो समझा रही हूँ वो साथ में लिख दिए. आप वीडियो पॉज करके ये नोट्स ले सकते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेना. और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि B पर
बैठ गए तो हमें क्या दिख रहा है। अब यहाँ पे जो इजी वे है वो क्या है, यहाँ पे इजी वे ये है कि जब बी पर आप बैठे और आपको एक ही वेलोसिटी का हिसाब किताब करना है जो बी से दिख रही है, तो आप x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट्स को अलग अलग कैलकुलेट करो। मतलब समझो इस बात का, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड। ठीक, अब वेलोसिटी ऑफ a रिलेटिव टू ग्राउंड क्या है, अगर आप इसको x या i कैप की डायरेक्शन मान लो और इसको y या j कैप की डायरेक्शन मान लो, तो ये वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी -10i कैप। आप वेलोसिटी वेक्टर को, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर नहीं होना चाहिए, जब आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो कैसे लिखोगे, निगेटिव x डायरेक्शन में है तो -10i कैप ऐसे लिखोगे। तो VA हो गया -10i कैप। अब तुम्हें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ये, तो यहाँ पर तो ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये y डायरेक्शन में, तो हमको इनके डायरेक्शंस ध्यान करके तब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप x और y कंपोनेंट्स निकालो, और दूसरा तरीका ये है कि आप, यहाँ इजी दिख रहा है कि हम a को वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं और हम b को भी वेक्टर फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। ये प्लस y डायरेक्शन में है तो इसे लिख सकते हैं b इन वेक्टर फॉर्म इज 10j कैप। तो यहाँ पर हमने VA लिख दिया -10i, फिर ये माइनस साइन, उसके बाद VB हो गया 10j कैप। तो ये है वेलोसिटी A शिप A की जो B को अब दिख रही है, यानी जो ग्राउंड फ्रेम में वेस्ट साइड में जा रहा था असल में अब वो B को वो ऑब्जर्वर को वो इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। ये इसको विजुलाइज करो कि जो ग्राउंड फ्रेम में वेस्ट साइड में जाता दिख रहा था, ग्राउंड पर जब आप खड़े थे, जब आप चलती हुई बी शिप पर बैठ गए, बी शिप आपके रिस्पेक्ट में ज़ीरो वेलोसिटी पर आ गई, रेस्ट पर हो गई, तो आपको ए इस तरीके से जाता दिखेगा, क्योंकि आपको ए की वेलोसिटी में -10i कंपोनेंट और -10j कंपोनेंट दोनों का असर दिखेगा। यहाँ देखो, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, उसमें x कंपोनेंट -10i डायरेक्शन में है और जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी -10j। तो a विद रिस्पेक्ट टू b विल हैव x कंपोनेंट एज -10i एंड y कंपोनेंट एज -10j, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो जो ये एंगल है वो tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो क्योंकि दोनों कंपोनेंट बराबर हैं तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पैरेललोग्राम पूरा करोगे तो ये एंगल 45 हो जाएगा। तो B को कैसे दिखेगा, A इधर जाता दिखेगा 45 डिग्री एंगल पर नॉर्थ डायरेक्शन से। तो अब हमारे पास सवाल किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया कि एक शिप तो रेस्ट पर है, दूसरा शिप इस तरीके से जा रहा है, दोनों के बीच t इक्वल टू 0 पर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला शिप इससे मिनिमम डिस्टेंस पर कब होगा। तो हम क्या करेंगे कि इससे पहले इसका जो पाथ प्रेडिक्टेड है वो बना लिया। ये किस फ्रेम की पिक्चर है, फ्रेम ऑफ बी।
तो बी फ्रेम में ऐसी पिक्चर है, बी से जो कि रेस्ट पर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ए के पाथ पर। ये जो परपेंडिकुलर है ये ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट होगी। इस चीज़ को पहले ध्यान से समझो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे मिलेगी। जो रेस्ट पर था उससे मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इस परपेंडिकुलर की लेंथ ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट होगी। अब क्योंकि हम ग्राउंड फ्रेम में नहीं, ये कैलकुलेशन बी फ्रेम में कर रहे हैं, तो अभी तक हमने क्या समझा था कि टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो टाइम को हम फ्रेम बदल कर आसान सिचुएशन करके कैलकुलेट करते थे और फिर उस टाइम को उठा लाते थे ग्राउंड फ्रेम में और वहाँ पे जो क्वांटिटीज़ पूछी होती थी वो सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर भी हम उसी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो चेंज नहीं होगी, और वो क्या है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। सिर्फ डिस्टेंस या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के बीच की, जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो इस फ्रेम में वही रहेगी और उस फ्रेम में भी वही रहेगी। तो हम इस फ्रेम में ये आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और वो ही हमारी ग्राउंड फ्रेम में भी ट्रू होगी। तो अब यहाँ पर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम इस ट्रायंगल को ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है ये 100 है और ये 45 है, तो ये डिस्टेंस 100 cos 45 हो जाएगी और ये डिस्टेंस 100 sin 45 हो जाएगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, 100 sin 45 यानी 100/√2। तो अगर क्वेश्चन पूछा है कि कितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस उनके बीच होगी तो 100/√2। अगर सवाल पूछा है कि किस टाइम पर वो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आएंगे, तो टाइम भी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, तो टाइम भी हम इस फ्रेम में कैलकुलेट करके उसे ग्राउंड फ्रेम में भी होल्ड करेगा वो। तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ध्यान से समझ लो। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचने वाली पोजीशन है ये, यहाँ तक चलने के लिए शिप ए को इतनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी 100 cos 45, और इस फ्रेम में वो इस दूरी को इस वेलोसिटी से तय करेगा, दैट इज़ -10I - 10j। तो हम इस डिस्टेंस को इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमको इस टाइम का पता चल जाएगा जितनी देर में वो ये डिस्टेंस तय करेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया जो कि हो गया 10√2। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज 10√2 √x² का x कॉम्पोनेंट स्क्वायर प्लस y कॉम्पोनेंट स्क्वायर, और उसके बाद जो डिस्टेंस वो इस वेलोसिटी से कवर कर रहा है 100 cos 45 अपॉन ये मैग्नीट्यूड। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 आवर्स। तो टाइम कितना लगा, 5 आवर्स। और अगर कोई पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है तो 10/√2 या 5√2। ये मेथड है उन क्वेश्चंस को करने का जो शिप या प्लेन के क्वेश्चंस होंगे जिसमें दोनों चल रहे होंगे और वो आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेंगे या पूछेंगे कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर कितने टाइम में आ जाएंगे। आप एक चलते ऑब्जेक्ट पर बैठ जाएंगे और दूसरे चलते ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इस तरीके से कंपोनेंट्स निकाल लेंगे अलग अलग, और जब कंपोनेंट्स निकाल लेंगे तो देखेंगे कि फिर हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, HC वर्मा से लिया है हमने, तो उसको चलो देखते हैं। बहुत ही पेशेंस के साथ, कूल माइंडेड समझो। मुश्किल लगे तो अभी छोड़ देना, बाद में उसको कुछ समय के बाद फिर से समझने की कोशिश करना। तो ये क्वेश्चन है, नहीं HC वर्मा का नहीं है, ये तो 2019 मेंस का क्वेश्चन है और अच्छा सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखो कि शिप ए इज़ सेलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट।
तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ बनाना पड़ जाएगा, बना लिया। शिप ए इज सेलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट with velocity 30I plus 50J. Where I cap points towards east and J cap points towards north. Ship B is at distance 80 km towards east and 150 km towards north of ship A and is sailing towards west at 10 km per hour. Find time in which the minimum distance between A and B will be achieved. तो अब हमें पता है कि हमको जो B बनाना है वो 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर वेस्ट नॉर्थ बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम A को नीचे बनाएंगे। A को ओरिजिन पर ले लिया, शिप A को, और उसकी वेलोसिटी जो उन्होंने कही थी वो बना ली। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने स्केल लेके डायग्राम बनाया है क्योंकि इमेजिन करने में आसानी होगी कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है। तो मैंने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स रखा है। तो अगर मैंने स्केल लेकर बनाया तो डायग्राम थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट बनता है और पिक्चर ज़्यादा क्लियर होती। तो देखो 30 है ये, तो ये 3 सेंटीमीटर, और ये 40 था कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और आपने पैरेललोग्राम पूरा करके एग्जैक्ट जो ए की वेलोसिटी थी इनिशियली, उसकी डायरेक्शन आपको लगभग एग्जैक्ट पता चल गई कि क्वेश्चन में कैसा विजुलाइज हो रहा था। तो शिप ए ओरिजिन पर है और इधर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। आगे देखो, अब ये जो शिप बी है वो 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ है। तो 8 सेंटीमीटर ईस्ट और 15 सेंटीमीटर नॉर्थ। शिप बी यहाँ है 18 और 150 यानी 15, 80 और 150 यहाँ पर है। तो हमने पहले तो शिप बी की लोकेशन कंफर्म कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि दिस शिप इज़ सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट, तो हमने वेस्ट की ओर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 10 थी तो 1 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाया, और क्योंकि निगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं -10 आई कैप। और अब तुमको बताना है मिनिमम डिस्टेंस। तो चले शुरू करें। ये तो जो डायग्राम मिला ये ग्राउंड फ्रेम में मिला, तो हमने लिख लिया कि ये ग्राउंड फ्रेम में ऐसा दिख रहा है। इसको एक बार फिर से देख लो। यहाँ पर ए की वेलोसिटी, यहाँ पर बी उसकी वेलोसिटी, और t इक्वल टू 0 पर a और b के बीच जो डिस्टेंस थी वो 150 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 170 किलोमीटर आएगा। ये तो ग्राउंड फ्रेम में दिख रहा था। अब हम किसी एक पर बैठकर दूसरे को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हम A पर बैठ जाते हैं और B को ऑब्ज़र्व करते हैं। जब A पर बैठ के B को ऑब्ज़र्व करेंगे तो अब B के पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, जबकि A के पास x में भी है और y कंपोनेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, हम x कंपोनेंट रिलेटिव अलग निकालेंगे, y कंपोनेंट रिलेटिव अलग निकालेंगे, ये आसान बैठेगा। तो सबसे पहले तो हम B के फ्रेम में पहुंचते हैं, A के फ्रेम में। A पर बैठे तो A रेस्ट पर हो गया। अब हमको B कैसा दिखेगा देखो। सबसे पहले x कंपोनेंट का हिसाब कर लें। फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ये क्या रहेगा?
वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसको हम दो हिस्सों में तोड़कर कैलकुलेट करेंगे। इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन। और इसी तरह से y कंपोनेंट भी रिलेटिव में ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। दैट इज वेलोसिटी ऑफ b इन y माइनस वेलोसिटी ऑफ a इन y डायरेक्शन। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ b इन x डायरेक्शन क्या है, b इन x डायरेक्शन है -10I, और फिर माइनस साइन लगा दो। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन। अब वेलोसिटी ऑफ a इन x डायरेक्शन देखो क्या है, 30I प्लस, ये है ना कंपोनेंट्स a की वेलोसिटी के, तो ये 30I प्लस का। तो देखो कैसे x कंपोनेंट निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, उसका x कंपोनेंट निकाल रहे हैं। तो b का x कंपोनेंट -10I, a का x कंपोनेंट, यहाँ पर a का x कंपोनेंट रख रहे हैं, और ये है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, उसका x कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा -10I b का और माइनस a का प्लस 30I। तो ये हो जाएगा 30 + 10 यानी -40I, ये b का वेलोसिटी का x कंपोनेंट रिलेटिव फ्रेम में। इसी तरह से b के पास y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो जब y डायरेक्शन में b की वेलोसिटी निकालेंगे तो y डायरेक्शन में b की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन a के पास +40j है। तो ये वैल्यू a के y कंपोनेंट की जगह रख देंगे, तो ये आ जाएगा -40, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -50 और वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा -50j। तो सबसे पहले तो ध्यान से पूरा ये प्रोसेस देख लो। शुरू में लगेगा कि मुश्किल सा है, लेकिन मुश्किल नहीं है। ध्यान से इसको एक बार पढ़ के उसके बाद खुद से करोगे तो ये आसान लगने लगेगा कि हम वेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं उनको अलग अलग रिलेटिव, मतलब जो फॉर्मूला है वो x कंपोनेंट पर अलग लगाएंगे, y पर अलग लगाएंगे और रिलेटिव कंपोनेंट्स निकाल लेंगे। जब रिलेटिव कंपोनेंट्स निकाल लिए तो अब देखो इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी, इसलिए इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही बोलूँगी, लेंदी क्वेश्चन था। तो अभी क्या है कि 40 और 50 का जो रिजल्टेंट है, देखो मैंने पैरेललोग्राम पूरा किया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट सिचुएशन पता करनी थी, इसीलिए स्केल से डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। फिर 50 और 40 का पैरेललोग्राम, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टेंट आया ना वो ये आया। ये रिजल्टेंट जो है ये किसका है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a ऐसी दिखेगी। और हमने कहा कि ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, इस एंगल को हम मान लें बीटा एंगल, ये रेड वाला एंगल बीटा एंगल। और एक ये जो पॉइंट B का था, ये जो B शिप थी, ये t = 0 पर यहाँ थी और A शिप यहाँ थी, और ये डिस्टेंस ही 170 किलोमीटर्स थी। तो हमने इन दोनों को ज्वाइन किया और जो ये लाइन
नॉर्थ से या वाई एक्सिस से जो ये एंगल बना रही है, इस एंगल को हमने नाम दे दिया अल्फा। अल्फा कैसे मिलेगा? tan अल्फा आराम से मिल जाएगा। कैसे? हमको इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है 80, परपेंडिकुलर पता है tan अल्फा, अगर निकालना चाहो तो परपेंडिकुलर पता है 80 और बेस पता है 150, तो tan अल्फा हो गया 8/15। इसी तरह से अगर मैं tan बीटा निकालना चाहूँ तो हमको परपेंडिकुलर पता है 40 और बेस पता है 50, तो tan बीटा 4/5 हो जाएगा। पता चल गया हमको। अब क्वेश्चन क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जिस डायरेक्शन में बी ए को जाता दिखेगा वो ये डायरेक्शन है, तो उसको आगे, उसके पाथ को आगे तक खींच ले गए और उसके बाद ए जो कि रेस्ट पर था वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब हमारी सारी समस्या है ये छोटा डिस्टेंस कैलकुलेट करने की। ये छोटा डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, इस ट्रायंगल से। ये जो ट्रायंगल है, इस पिंक शेडेड ट्रायंगल में ये डिस्टेंस कैसे मिलेगी? ये है 170, तो ये है 170 साइन थीटा और ये है 170 कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन तो हमारा इस ट्रायंगल में है, पर थीटा पता नहीं है। पता है अल्फा और पता है बीटा। तो हमने ध्यान किया कि बीटा माइनस अल्फा, देखो बीटा क्या है? ये रेड वाला एंगल, और अल्फा है ये ग्रीन वाला एंगल। तो थीटा क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा। तो अब हमको कुछ करके बीटा माइनस अल्फा निकाल लेना है। अगर हम बीटा माइनस अल्फा मतलब थीटा कैलकुलेट कर ले गए तो सवाल आसान है। तो इसीलिए इसको इस तरीके से, मुझको स्केल पे ज़्यादा इजी लगा कि मैं तुम लोगों को बोलूं कि स्केल में प्रॉपरली डायग्राम बनाओ जिससे तुमको एक्चुअल पिक्चर पता चले। अब जब हमारी समझ में आ गया कि अल्फ़ा tan अल्फ़ा क्या है, tan बीटा क्या है, और हमें ये भी समझ में आ गया कि थीटा पता लगते ये सवाल हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन को कैसे किया। हमको पता है कि थीटा इज़ इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा। ये तो पक्का है ना कि थीटा इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ देखा हमने कि हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करनी है तो हमको 170 साइन थीटा पता करना है, और अगर हमको टाइम पता करना है कि कितने टाइम में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी इस पोजीशन पर पहुंचेगा, तो हमको ये डिस्टेंस पता करनी है। इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस की डायरेक्शन की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते ही टाइम पता चल जाएगा। तो हमें असल में 170 cos थीटा पता करना है, उससे वेलोसिटी से डिवाइड करना है क्योंकि उन्होंने टाइम पूछा है। तो कॉस थीटा का इंतज़ाम किया जाए। कॉस थीटा का इंतज़ाम बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस कैलकुलेशन लेंदी था। कॉस थीटा अगर आप दोनों तरफ कॉस ले लो तो कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा, इसको ओपन कर दिया, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये याद होना चाहिए। कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब कॉस बीटा देखो बहुत आसान है, कैसे करेंगे? tan बीटा पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस हो जाएगी, इसको कहीं पे लिख लो कि इस बीटा ट्रायंगल में फॉर एंगल बीटा जो हाइपोटेनस है वो क्या होगी? √5² प्लस 4²। और जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? एंगल अल्फ़ा के लिए जो हाइपोटेनस होगा वो हो जाएगा √8² प्लस 15² विच विल बी 17। तो
ये जो वैल्यू है ये तो आपकी √41 रहेगी और ये वैल्यू आपकी पूरी 17 आ जाएगी, अंडर रूट से बाहर आ जाएगी। तो एंगल बीटा के केस में हाइपोटेनस और एंगल अल्फा के केस में हाइपोटेनस। बस फटाफट वैल्यू रख दो। कॉस बीटा बेस 5 अपॉन हाइपोटेनस। कॉस अल्फा बेस दैट इज 15 अपॉन हाइपोटेनस। इसी तरह से साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन बीटा, सॉरी अल्फा ये है और बीटा ये है, अल्फा साइन अल्फा 8 अपॉन हाइपोटेनस। साइन बीटा 4 अपॉन हाइपोटेनस। बस कैलकुलेट किया, सिंप्लीफाई किया, फटाफट सिंप्लीफाई किया तो आपको ये वैल्यू मिल गई। अब तुम्हें टाइम चाहिए तो टाइम के लिए ये 170 कॉस थीटा अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो कॉस 170 कॉस थीटा 170 और ये कॉस थीटा रहा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट, 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ये देखो सिंप्लीफाई करो, वैल्यू आ जाएगी 2.6 आवर्स। कैलकुलेशन ज़्यादा था, डेफिनेटली ट्रिकी क्वेश्चन था, इसलिए इसको बहुत आराम से देखना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। इसको करने के बाद आपको लगेगा कि शिप वाले प्रॉब्लम्स मुझे कोई भी मिलेंगे तो मैं बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। एंड नोट डाउन द क्वेश्चन ऑल्सो। ग्राउंड फ्रेम डायग्राम, and this is frame of A। ये डायग्राम A फ्रेम से देखने पे दिखेगा। चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, और क्वेश्चन क्या था कि 2 पॉइंट्स हैं A और B। A और B 2 पॉइंट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस 500 किलोमीटर है, और ये जो AB लाइन है ये नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ऑब्वियसली हमको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नोट करते जाओ, मैं समझा रही हूँ कि ए से बी 500 किलोमीटर दूर एक डेस्टिनेशन है, और ए बी लाइन नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट में है, 30 डिग्री ईस्ट में। ये जो येलो लाइन है ये ए बी लाइन बता रही है। जब ए पर एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस समय वहाँ पे विंड थी, और उस विंड की डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ थी, और 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो विंड फ्लो कर रही थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेन अगर इसी रास्ते पर चले ए बी लाइन पर, तो विंड उसको इस रास्ते से भटका देगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेन को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि विंड के इफ़ेक्ट के बाद उसकी जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो ए बी हो और वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। तो ऑब्वियसली अगर इस पर चलेंगे तो विंड हमको इधर इस लाइन से डिविएट करके अपने इफ़ेक्ट में इधर कहीं ले जाएगी, क्योंकि ये विंड
और ये वेलोसिटी, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमको पैरेललोग्राम से पूरा करने पर पता चलेगा कि जो रिजल्टेंट है वो इधर कहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमको इस लाइन से राइट डायरेक्शन में शिफ्टेड होकर चलना पड़ेगा, जबकि ये विंड रिजल्टेंट इस येलो लाइन को बना दे। तो हमने क्या किया कि हमने पहले इस विंड के एरो से, इसको भी हमने स्केल से ही ड्रॉ किया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा कि आप स्केल के थ्रू ड्रॉ करो। तो ये 20 था तो ये 2 सेंटीमीटर का वेक्टर बनाया, और ये जो AB था ये लाइन ड्रॉ की 500 किलोमीटर थी, ये स्केल से नहीं कर सकते थे, स्केल से तो पेपर पे आता ही नहीं। तो मैंने यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ की, ये लाइन इस पॉइंट को, इस येलो लाइन को कहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें वो पैरेललोग्राम चाहिए जिसका रिजल्टेंट ये डायगोनल ये येलो लाइन हो। तो एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड के लिए हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की जिसने येलो लाइन को यहाँ कट किया। बस एक लाइन इसके पैरेलल, एक लाइन इसके पैरेलल, और पैरेललोग्राम बन गया। अगर रिजल्टेंट ये है, एक वेक्टर उसका ये है, तो दूसरा वेक्टर डेफिनेटली ये ग्रीन लाइन होनी चाहिए। तो इस डायरेक्शन में अगर हम चले तो हमें विंड के असर के बाद रिजल्टेंट AB लाइन मिल जाएगी और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो अब हमने जब डायग्राम बना लिया, क्लियर कर लिया दिमाग में, तो हमने विंड की डायरेक्शन कौन बता रहा है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है, तो 20 मीटर पर सेकेंड। प्लेन की डायरेक्शन विंड के रिस्पेक्ट में गिवन थी कि हवा में उसकी रफ्तार 150 है, तो 150 मीटर पर सेकेंड ये प्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में है। और हमको क्या बताना है, प्लेन की ग्राउंड से कैसी दिखेगी, क्योंकि फाइनली प्लेन को किधर चलना है, फाइनली प्लेन को A से B जाना है, यानी ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसको प्लेन किधर जाता दिखे तभी वो सही डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, A से B। यानी जो कंट्रोल रूम में लोग हैं उनको प्लेन A से B जाता दिखेगा, तभी उनको समझ आएगा कि हाँ प्लेन सही जा रहा है। तो पायलट को अपने प्लेन को इस डायरेक्शन में चलाना होगा, और ये डायरेक्शन किसको दिखाई पड़ेगी, ये डायरेक्शन जो विंड पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ है उसको ये डायरेक्शन दिखेगी और ये ग्राउंड पर दिखेगी। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसे आप रिलेटिव टू ग्राउंड कहेंगे, किसे आप रिलेटिव टू वाटर या विंड इस या रेनमैन प्रॉब्लम में रिलेटिव टू मैन कहेंगे, किसे आप रिलेटिव टू ग्राउंड कहेंगे। तो एक बात समझ लो कि जिधर फाइनली उसको जाना है ये वो डेस्टिनेशन लाइन है जो ग्राउंड पर बैठे कंट्रोल रूम के आदमी को दिखनी है। तो ये जो वेलोसिटी है ये प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो ऑब्वियसली अब क्या बचा, प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, और वो उन्होंने इसी मेंशन के साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि प्लेन, ये क्वेश्चन नंबर 49 है HC वर्मा का। तो आप देख सकते हो काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन क्या है। तो अब हमारा डायग्राम रेडी है, अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो हम कहते हैं पहले हम सोच लें कि लेट प्लेन शुड हेड एट एंगल थीटा फ्रॉम द नॉर्थ। क्यों नॉर्थ से लिया डायरेक्शन, क्योंकि नॉर्थ से ही जो एक्चुअल डायरेक्शन है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो दी है। तो हमने नॉर्थ से ही कहा कि प्लेन को थीटा एंगल पर एक्चुअली चलना चाहिए, तब विंड उसको 30 डिग्री पर डिविएट करके पहुंचाएगी। तो हमने कहा कि लेट द प्लेन शुड हेड थीटा डिग्री फ्रॉम द नॉर्थ, एंड अब वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग। वाई डायरेक्शन में ये जो प्लेन की विद रिस्पेक्ट टू विंड है, एक्चुअली ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन उतना नहीं है जितना कि वेक्टर्स का क्वेश्चन है। प्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू विंड, ये जो ग्रीन लाइन है,
इसका y कंपोनेंट क्या है? VPW cos थीटा होगा। अब ये जो प्लेन की ग्रीन वाली लाइन है, इसकी y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है VPW cos थीटा, उस कंपोनेंट को अकेला नहीं रहने देगा, विंड भी उसमें आकर एडअप हो जाएगा। तो ये जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो असल में VPW cos थीटा प्लस विंड की वेलोसिटी। तो जो ये कंपोनेंट था उसका y कंपोनेंट खुद उसका अपना कंपोनेंट प्लस जो विंड उसी डायरेक्शन में ब्लो कर रही थी, और x कंपोनेंट विच इज़ VPW sin थीटा वो अकेला है, क्योंकि विंड का कोई भी कंपोनेंट x डायरेक्शन में नहीं है। तो हमने कहा कि जो y डायरेक्शन में इस जो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो उसकी जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो अकेला नहीं है, उसके साथ विंड भी कनेक्टेड है, और y डायरेक्शन में प्लेन की वेलोसिटी एक्चुअली इतनी है विंड के साथ, और x डायरेक्शन में प्लेन की वेलोसिटी इतनी है, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये येलो लाइन दे रही है। तो रिजल्टेंट या एक्चुअली जो ग्राउंड पे बैठे आदमी को प्लेन दिखेगा वो वेलोसिटी कैसे मिलेगी, उस जो ये x कंपोनेंट है x कंपोनेंट है ये, और जो y कंपोनेंट है ये, जो x कंपोनेंट है और जो y कंपोनेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो येलो आना चाहिए। तो हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। अब एंगल थीटा जो रिजल्टेंट है वो नॉर्थ से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो थीटा एंगल है नॉर्थ से बना रहा है, इसका मतलब है कि वो विंड की वेलोसिटी से थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर तुम्हें याद हो तो वेक्टर्स में हम लोगों ने एक इस तरीके से वेक्टर A, वेक्टर B और ये पैरेललोग्राम पूरा और ये रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट मान लो बना रहा हो एंगल अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा क्या होता था? tan अल्फ़ा होता था मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। थीटा क्या है? A और B के बीच का एंगल। तो जिससे R A वेक्टर से अगर अल्फ़ा बना रहा है तो दूसरा वाला वेक्टर B साइन थीटा अपॉन ये वेक्टर A प्लस B कॉस थीटा, ये क्या था? रिजल्टेंट का एंगल A से। यहाँ भी तो वही सिचुएशन है, रिजल्टेंट का एंगल A से थीटा है। तो रिजल्टेंट का एंगल A से यहाँ पे लिख लिया, सॉरी रिजल्टेंट का येलो लाइन का एंगल A से 30 है, तो ये थीटा नहीं 30 होगा। तो tan 30 और थीटा क्या है? इन दोनों वेक्टर्स का, रेड और ग्रीन वेक्टर्स का के बीच का एंगल थीटा है। तो एक्चुअली इधर हेड कर रहा है प्लेन और रिजल्टेंट यानी येलो लाइन। तो tan 30 दैट मीन्स द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड दिस वेक्टर विल बी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ग्रीन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो अब जो पता था वो वैल्यूज़ रख दें। प्लेन का विंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पता थी, विंड की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता है, प्लेन की विंड के रिस्पेक्ट में थीटा नहीं पता है, और ये पता है कि रिजल्टेंट नॉर्थ से या विंड की डायरेक्शन से 30 एंगल पर है।
तो जब हमने सारी वैल्यूज़ रख दी तो अब देख रहे हो कि सिर्फ तुमको थीटा पता करना है, और जैसे ही थीटा पता चल जाएगा तुमको एक्चुअली पता चल जाएगा कि प्लेन को किस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि वो ए बी लाइन के अलोंग फाइनली उड़ सके। तो चलो देखते हैं, कैलकुलेशन पूरा कर लें। 1030 की वैल्यू रखी, सिंप्लीफाई किया, क्रॉस प्रोडक्ट किया। जब क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तब देखो यहाँ पर, इसको नीचे लिखते हैं कॉस थीटा। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट किया तो 2 + 15 कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 15√3 साइन थीटा। अब हमने क्या किया कि हमने इस टर्म को इस साइड में ले आए। यहाँ पर आपको एक स्टार लगाना पड़ेगा कि ये जो ट्रिक है ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छे से यूज़ हो रही है और कई जगह यूज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करना पड़ेगा कि तुमको याद रहे कि ये ट्रिक का इस्तेमाल कई जगह पे बहुत काम का हुआ है। क्या है ट्रिक? कि हमने 2 को इधर छोड़ दिया और इस टर्म को इधर लेकर आए। अब जब हम इधर लेकर आए तो ये देखो 15√3 साइन थीटा है और ये -15 कॉस थीटा हो गया। अब क्या किया कि जो 2 है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ बचेगा 1, ये 15 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 2 से डिवाइड किया तो √3/2, ये साइन थीटा, ये माइनस, ये 1/2, ये कॉस थीटा। अब √3/2 जो है वो क्या है? वो कॉस 30 है और 1/2 क्या है? वो साइन 30 है। तो जब इन दोनों की वैल्यूज़ रखी तो ये साइन थीटा -30 का फॉर्म आ गया। तो साइन थीटा -30 इज़ 1/15। अब थीटा सीधे नहीं पता चल रहा है तो हमने क्या ट्रिक निकाली कि साइन थीटा -30 इज़ 1/15, तो थीटा -30 इज़ साइन इनवर्स 1/15। तो हमने कहा कि थीटा -30 1/15 है। तो हम वापस डायग्राम पर गए और हमने कहा कि थीटा तो ये पूरा एंगल है और 30 ये एंगल है, तो ये जो छोटा सा एंगल बच रहा है ये एंगल है थीटा -30। तो थीटा तो नहीं मिल रहा था, थीटा -30 मिल रहा था। तो हमने कहा कि जहाँ पहुँचना है उस लाइन से 1/15 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। समझ आया इसका आंसर कैसे एडजस्ट हुआ? हमें थीटा मिल नहीं रहा था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन थीटा -30 मिला। तो हमने कहा कि थीटा -30 इज़ दिस लाइन। तो हमको ये जो ए बी लाइन है उससे एंगल पता चल गया है। तो हमने कहा कि जिस तरफ एक्चुअली उसको जाना था उससे 1/15 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट उस प्लेन को एक्चुअली चलना चाहिए, तो वो विंड के इफ़ेक्ट के बाद एक्चुअल पाथ पर पहुंच जाएगा। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, आप इसको आराम से नोट करो, पहले पॉज करके। समझ आए तो अच्छा है, नहीं समझ आए तो इसको नोट करके रख लो। जो बच्चे मेंस की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इसको अच्छे से समझना चाहिए। और अब आ जाते हैं रेन मैन प्रॉब्लम पर। क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं। एससी वर्मा के 2 क्वेश्चंस अच्छे थे, उन्हीं से हम रेन मैन प्रॉब्लम को समझ लेंगे।
A man holds umbrella at 30 degree from vertical to keep rain away. When he starts moving with 10 km per hour, for him rain starts falling vertically down. Find velocity of rain with respect to road and man. That means you have to find velocity of rain with respect to ground also and with respect to man also. तो पहले तो रफ डायग्राम कि हमें क्वेश्चन समझ में आए। जो पर्सन था उसने अपने अम्ब्रेला को 30 डिग्री वर्टिकल से इंक्लाइन कर रखा था क्योंकि उसके लिए रेन 30 डिग्री गिर रही थी जब वो खड़ा था। तो जब वो खड़ा था तो उसको जो रेन की डायरेक्शन दिख रही है दैट इज़ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग द रेन बिकम्स वर्टिकल। तो हमने इस वर्टिकल डायरेक्शन को भी बना दिया और अब हमने कहा कि आदमी के लिए रेन वर्टिकल हो गई, मतलब रिजल्टेंट वर्टिकल हो गया। किसका रिजल्टेंट? जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेन थी उस वेक्टर का, और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैन की वेलोसिटी थी उस वेक्टर का। यानी ये जो फाइनली आदमी को दिख रही है ना, ये रिजल्टेंट बिकॉज ऑफ मैन है। मैन को जो दिख रही है वो आदमी के लिए रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट? रेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसकी अपनी वेलोसिटी का असर है, रिजल्टेंट है। तो हमने कहा कि भाई रिजल्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये होनी क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये होना चाहिए। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी का की फॉर्मूला जो हर जगह लग रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ रेन तो ये है तो एज इट इज़ बना लिया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस के साथ है तो इस वेलोसिटी को पलट दिया और पलट कर वेलोसिटी ऑफ रेन में ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने का यही तो तरीका है ना, कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसको पलटा और ऐड कर दिया। तो जब इसमें ये ऐड हो तो रिजल्टेंट जो आदमी को दिख रहा है वो वर्टिकल होना चाहिए, कर दिया। अब हमें पता है कि वर्टिकल से रेन की वेलोसिटी 30 डिग्री थी, ये पता है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया हमने, कि जब हमको सारे वेक्टर्स दिख गए तो हमने कहा कि जो tan 30 है उसको क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब इसका मैग्नीट्यूड और बेस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले तो ये इक्वल टू tan 30 लिख लिया। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 है तो 1/√3 इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर, ये गलत लिखा हुआ है, tan 30, ये बेस की जगह बेस ऊपर लिख गई हूँ, इसको सही कर लो। tan 30 इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन, अब वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन बेस, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो 1/√3 इज़ इक्वल टू, इसमें हमको वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है, रख दी ये वैल्यू। तो जब ये वैल्यू रख दी, ये पता है, तो सिर्फ यही तो कैलकुलेट करना है। तो ये हो गई 10 × √3, ये क्या है 10, और ये आपको पता करना है। तो ये हो गया 10√3, तो ये आंसर आ गया। इसके अलावा और क्या पता करना है? विद रिस्पेक्ट टू मैन तो पता चल गया 10√3, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए इसी ट्रायंगल में हम तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर दें तो आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगा। यानी sin 30 इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यानी मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है 10, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये पता करना है,
और साइन 30 1/2 है, पता चल गया रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आसान सवाल था, बढ़िया सवाल था, इसको नोट कर लो। तो इसी ट्रायंगल से दोनों आंसर मिल गए। tan 30 से दिस अपॉन दिस, तो ये पता चल गया क्योंकि ये गिवन था, और sin 30 से दिस अपॉन दिस, ये पता था, ये पता चल गया। तो दोनों अननोन क्वांटिटीज़ इसी ट्रायंगल से पता चल गए। अगला रेनमैन प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एस सी वर्मा से है। ये क्वेश्चन भी एस सी वर्मा का है, चलो फटाफट इसको पढ़ते हैं। अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड at 8 km/h finds rain falling vertically down, right? Then he increases his speed to 12 km/h and finds that rain now is falling at an angle 30 degree with the vertical. Find the speed and direction of rain with respect to road or ground. You have to find the direction also and the magnitude of rain also with respect to ground. तो इसको भी आराम से एनालाइज करते हैं। आदमी 8 km/h चल रहा है और उसको रेन वर्टिकली नीचे गिरती दिख रही है। तो फॉर्मूला क्या है रिलेटिव वेलोसिटी का? रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। This is velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. तो अब हमने कहा कि रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पता करनी है। रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट पे वर्टिकली डाउनवर्ड है, और मैन अगर राइट साइड में जा रहा है तो माइनस ऑफ हिज वेलोसिटी विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमने पहले रिजल्टेंट बनाया, उसके बाद हमने आदमी की वेलोसिटी का निगेटिव रिवर्स बनाया। अब हमको पता है कि अगर रिजल्टेंट ये है और एक वेक्टर ये है जिसका रिजल्टेंट ये है, तो दूसरा वेक्टर ऐसा होना चाहिए। देखो, दिस प्लस दिस विल बी दिस, लॉ ऑफ ट्रायंगल। तो बस ये रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल गया हमको, डायरेक्शन मिल गई, मान लिया थीटा। जब इसको थीटा मान लिया तो अब हमने देखो कैसे इसको सॉल्व किया। ये तरीका सीखना पड़ेगा, यही सबसे आसान तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल सॉल्व करने का, कि ये जो वेलोसिटी थी ना रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जिसे पता करना है, उसके दोनों कंपोनेंट देखो ज़रा, एक इधर होगा एक इधर होगा। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रेन कॉस थीटा। अच्छा, इस x डायरेक्शन में एक तो इसका कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा है आदमी की वेलोसिटी। ध्यान से देखो, इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में इधर है और आदमी की जो निगेटिव वेलोसिटी है वो इधर है। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी x डायरेक्शन में देखोगे तो कैसे देखोगे, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट माइनस मैन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और अगर ये इक्वल हो गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट रेन का बचेगा, और इसीलिए रिजल्टेंट में ये वर्टिकल कंपोनेंट ही आ जाता है जो आदमी को नीचे गिरती हुई दिखती है वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर से समझो इसको एक बार, आदमी के दौड़ने की वजह से इसके रिलेटिव रेन का x कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है। आदमी की वेलोसिटी रेन के रिस्पेक्ट में जब निकाले तो दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी होगा, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इन x डायरेक्शन। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो असल में रेन का
एक्चुअल जो रेन की वेलोसिटी है उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। ये कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जो है वो आदमी का दौड़ना कैंसिल कर देता है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है जब वो बचा तो आदमी को क्या दिख रहा है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रेन दिख रही है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही सुरक्षित बचा। तो वी आर कॉस थीटा ही वो रिजल्टेंट है जो आदमी को दिख रहा है। तो जो रिजल्टेंट है वो कौन है, वी आर कॉस थीटा। और जो एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट है वो तो ज़ीरो हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ रेन में जब माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन जुड़ी तो अगर ये दोनों कैंसिल कर रहे हैं जिससे कि सिर्फ वर्टिकल इफेक्ट बच रहा है, तो एक तो रिलेशन ये पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रेन साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। इसी वजह से सिर्फ वर्टिकल बच रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कुछ बच ही नहीं रहा है। और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ रेन कॉस थीटा है वही रिजल्टेंट दे रहा है। रिजल्टेंट मतलब जो आदमी को दिख रहा है, मतलब रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। यही आदमी को, यही कंपोनेंट आदमी को फील हो पा रहा है, क्योंकि उसका अपना दौड़ना एक्स कंपोनेंट को नलीफाई कर रहा है। तो ये दो इक्वेशन मिली हमें। आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, दी हुई है। तो वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 8 और वी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज़ वर्टिकल। आराम से देखो पहले इसको ढंग से। सवाल अच्छा है और गोल गोल घुमाता है, इसलिए बहुत सुकून से समझने वाला सवाल है। इसको 2 बार 3 बार तुमको देखना पड़ेगा। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आदमी दौड़ने लगा। जब आदमी दौड़ने लगा और जो रेन थी वो तो अभी भी पहले की तरह ही गिर रही है थीटा एंगल पर वर्टिकल से। भाई आदमी अपनी रफ्तार कम ज़्यादा कर रहा है। रेन जिस डायरेक्शन में गिर रही थी उसी डायरेक्शन में वर्टिकल से गिर रही है। जब वो कम रफ्तार से दौड़ रहा था तो उसको, उसकी रफ्तार रेन के इस कंपोनेंट को नलीफाई कर रही थी और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट उसको फील हो पा रहा था। लेकिन जब उसने अपनी रफ्तार बढ़ा दी तो अब रेन तो उसी डायरेक्शन में गिर रही है, लेकिन जो आदमी की माइनस VM है वो बढ़ गई। और जब वो बढ़ गई तो दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी, प्लस कह रही हूँ लेकिन असल में माइनस हो रहा है, देखो, दिस वेलोसिटी प्लस दिस वेलोसिटी विल गिव यू रिजल्टेंट लाइक दिस। और वही आदमी को 30 डिग्री पर गिरती दिख रही है। अब वर्टिकल से 30 डिग्री पर दिख रही है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। तो समझ आया 30 कैसे दिख रही है। पहले उसकी इस वेलोसिटी का जो एक कंपोनेंट था उसको माइनस VM कैंसिल कर रहा था, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट इस वेलोसिटी का था वही इफ़ेक्टिव था। अब क्या हो रहा है, ये जो कंपोनेंट है इसका, अब ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा है। अब नेट इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट बच रहा है, दिस माइनस दिस। मैन की वेलोसिटी, ये देखो मैन की वेलोसिटी माइनस VR साइन थीटा, ये अब कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कुछ बच रहा है। कितना बच रहा होगा, मैन की वेलोसिटी माइनस VR साइन थीटा। मैंने मैन की वेलोसिटी में से VR साइन थीटा क्यों माइनस किया, उल्टा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर तुम रिजल्टेंट देखो तो रिजल्टेंट के पास वर्टिकल कंपोनेंट है और रिजल्टेंट के पास इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी इसके और इसके असर से एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बच रहा है उसकी डायरेक्शन इधर है और इसके
के वर्टिकल कंपोनेंट को तो अभी भी कोई चुनौती देने वाला नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट तो अभी भी वैसा ही है, वो अकेला ही है, क्योंकि ये तो मैन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो रेन की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इंटरफेयर कर रही है। तो सबसे पहले हमने रेन की वेलोसिटी के कंपोनेंट किए चुपचाप, फिर हमने मैन की वेलोसिटी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी निकालते समय आप VR माइनस VM करते तो VM अगर इधर था तो उसको उलट कर माइनस VM लिख लिया। अब इनका हिसाब करेंगे, x का अलग करेंगे, y का अलग करेंगे। तो x वाले में तो हमको समझ आ गया कि अगर रेन, रिजल्टेंट रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अब बदल गई है तो हमने यहाँ डैश भी लगा दिया है। इसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है, तो ये कंपोनेंट कहाँ से आ रहा है? मैन की बढ़ी वेलोसिटी माइनस रेन साइन थीटा। तो मैंने लिखा रिजल्टेंट VRM साइन थीटा इज इक्वल टू मैन्स वेलोसिटी माइनस रेन्स साइन कंपोनेंट। और जो वर्टिकल कंपोनेंट था दैट इज स्टिल अनडिस्प्यूटेड, तो VR cos थीटा is still equal to the resultant's cos component, which now is cos 30। रेन अभी भी वर्टिकल से थीटा पे है और रेन पहले भी वर्टिकल से थीटा पर थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये तो आदमी था जो अपनी रफ्तार की वजह से रेन को पहले वर्टिकल गिरता दिख रहा था और अब 30 डिग्री एंगल पर गिरता देख रहा है। तो क्वेश्चन को बार बार इस एक्सप्लेनेशन को सुनोगे तो फील आ जाएगी। तो हमने क्या कहा कि VR with respect to man sin 30 is equal to this minus this, and VRM cos 30 is equal to this component। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए? हमें तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। तो हमने पहले इसको डिवाइड कर दिया, इसको हटाया, इससे मुक्ति पाई। जब डिवाइड कर दिया तो tan 30 इक्वल टू दिस आ गया। जब ये आ गया तो अब हमने देखा कि भाई हमको क्या ये पता है? हाँ पता है। कितना है? 12। अब हमने देखा क्या VRG साइन थीटा पता है? तो वापस गए यहाँ पे, VRG साइन थीटा पता है 8, तो हमने लिख दिया 8। अब हमने देखा क्या VRG cos थीटा पता है? तो वापस गए, VRG cos थीटा तो V ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है जब वो 8 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा था, तो हमने ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी। अब हमने देखा कि अरे हमें रेन की वेलोसिटी आदमी के रिस्पेक्ट में मिल रही है, तो पहले निकाल लिया वही 4√3। फिर हम वापस गए यहाँ पर, हमको क्या चाहिए था? रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर वापस गए और हमने देखा कि कौन सा वो इक्वेशन है जो हमको रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिला सकता है। तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी दिला सकता है और ये भी दिला सकता है। तो रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VMG अपॉन 8 भी हो सकती है और VRM अपॉन cos थीटा भी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हमने VRM अपॉन cos थीटा ले ली है, VRM यहाँ निकाल लिया था, तो cos थीटा कहाँ से मिला हमको? cos थीटा मिला है यहाँ से, इन दोनों को डिवाइड करने से tan थीटा मिल गया। और इससे हमको एक शॉर्ट मेथड और भी मिल रहा है बेटा, देखो अगर हम इसको यूज़ करें तो V ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 8 अपॉन साइन थीटा। और अगर हम डिवाइड करते हैं, नहीं VRM तो हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता बेटा। ठीक है, तो VRM अपॉन cos थीटा से भी मिल सकता है, VRM तो निकालना ही पड़ेगा हर हालत में, तो छोटा नहीं हो सकता। और तो VRM अपॉन cos थीटा करके भी मिल गया है। और अगर एक बार आपको
tan थीटा मिल गया है विद हेल्प ऑफ VRM, तो फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज़ करके VRG मिल जाएगा। तो इसको बहुत आराम से धीरज में समझ के लिख लो, जिसको ये इच्छा है कि वो ट्रिकी क्वेश्चंस करे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमको 2 पर्सन्स है, कार है, बसेस हैं, और क्वेश्चन होता है कि वेदर द मूविंग ऑब्जेक्ट ए विल कैच मूविंग ऑब्जेक्ट बी और नॉट, एंड इफ़ इट विल कैच देन एट व्हाट टाइम, एट व्हाट डिस्टेंस, एंड इफ़ इट विल नॉट कैच देन फ्रॉम फॉर व्हाट डिस्टेंस इट विल मिस द बी ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के सवाल कैसे करने हैं, चलो देखते हैं। 2 ऑब्जेक्ट ले लिए ए और बी। ए 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है और ये उसका एक्सेलरेशन, ए 20 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है, ये उसका एक्सेलरेशन, बी 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करता है और ये उसका एक्सेलरेशन। और जब ये शुरू करते हैं एट t = 0, तब इनके बीच की डिस्टेंस 60 मीटर है। अब हमें पता करना है कि ए बी को कैच करेगा या नहीं। तो क्या करते हैं, जब भी 2 चीज़ें चल रही हो तो आप एक पर बैठ जाइए और दूसरे को देखिए। आप अगर बी पर बैठ गए और ए को देखेंगे तो ए की रफ्तार बी के रिस्पेक्ट में क्या मिलेगी, ए की रफ्तार माइनस बी की रफ्तार। ए की क्या है, एक्सेलरेशन, ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, तो वो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो हम दूसरा डायग्राम बना लेंगे कि भाई अगर बी पर हम ऑब्जर्वर की तरह बैठ गए तो बी से हमको क्या दिखेगा कि बी तो रुकी हुई दिखेगी और ए चलती दिखेगी। ए चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स दी बी, और ए की जो एक्सेलरेशन है वो असल में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी डी एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी धीमी हो रही है। तो बी को क्या दिखेगा कि ए 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू करती है और उसकी रफ्तार धीमी हो रही है। ठीक, तो अब डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर। हमको पता करना है वो कैच करेगा कि नहीं। तो पहले हम ये पता कर लें, क्योंकि हमने देख लिया कि वो डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो हमें ये पता करना है कि वो 60 से पहले ही रुक जाएगा कि 60 मीटर कवर करने के बाद रुकेगा। अगर 60 कवर करने के बाद रुकेगा तो वो पकड़ लेगा बी को, अगर 60 से पहले रुक जाता है तो फिर बी को कभी पकड़ नहीं पाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी which is -2 meter per second square suggest that for B A is deaccelerating, and to find whether A will catch B or not, हम क्या करते हैं कि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके पता करते हैं कि V A असल में डी एक्सीलरेशन की वजह से कितनी दूरी पे जाके रुक रहा है। तो ये 0, वो 10 मीटर से चलना शुरू करता है तो ये -2AS। तो जब आप S की वैल्यू निकालेंगे तो 25 मीटर आएगी। मतलब ये कि 60 मीटर पर B है, B रुका हुआ है B के फ्रेम में, B जो फ्रेम ऑफ B है उसमें, तो B के फ्रेम में A जो है वो चल तो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार घट रही है, और कितनी डिस्टेंस पर, 25 मीटर पर जाकर वो रुक जाएगा, और रुक जाएगा तो फिर वो कभी भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है पता करने का कि एक ऑब्जेक्ट दूसरी चलते ऑब्जेक्ट को पकड़ सकता है कि नहीं। एक पर बैठ गए, दूसरे का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ रहा है तो फिर इसके बराबर चांसेस हैं कि वो पहले ही रुक सकता है, और अगर रुक सकता है तो चुपचाप वो S पता कर लो जिस पर वो रुक जाएगा। अगर वो S 60 से कम है, डिस्टेंस गिवन से कम है, तो ऑब्वियसली ए बी को पकड़ नहीं पाएगा। तो पहले तो आप ये सवाल आराम से नोट कर लो, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस है। कैसे करना है इसका सबसे आसान तरीका यही है।
और बी को कैसा फील होगा, जो बी पे ऑब्जर्वर बैठा है उसको लगेगा कि पहले तो उसको लगेगा कि ए उसके पीछा कर रहा है, फिर उसको दिखेगा कि अरे ए तो धीमा होता जा रहा है, और फिर उसको दिखेगा कि अरे ए तो रुक गया, और उसके बाद उसको फील होगा कि जैसे अब ए की डिस्टेंस उससे बढ़ रही है, यानी ए पीछे जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम में जो आदमी खड़ा हुआ है उसको तो ये दिखेगा कि बी पहले चल रहा था, धीमा होता रहा, 0 हो गया, और उसके बाद -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से वो रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा। और बी पे जो खड़ा है उसको क्या फील होगा कि पहले वो पीछे आ रहा था और उसके बाद फिर। अब इसी क्वेश्चन में ये ऐड हो जाता है कि अगर ए बी को पकड़ सकता है तब सवाल कैसे बनेगा। तो जैसे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमको पता है कि ए बी को अगर 25 मीटर से कम हो डिस्टेंस तो पकड़ लेगा, तो हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं इसकी, मान लो 21 मीटर। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 60 मीटर से कम करके 21 मीटर्स ले लेते हैं। और अब देखते हैं सेम डेटा के साथ कि अब ए बी को पकड़ पाएगा तो कब और कहाँ। तो इस सवाल को फटाफट कर लेते हैं। ग्राउंड फ्रेम में अब सिचुएशन क्या है, वही डेटा, ए बी के पीछे भाग रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 21 मीटर है इनिशियली। बी पर बैठ गए, जब बी पर बैठ गए तो बी रेस्ट पर आ गया। अब ए बी को इस एक्सेलरेशन से डी एक्सेलरेट होता दिख रहा है और उसकी शुरुआती रफ्तार जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब हमको देखना है कि अब हमें पिछले क्वेश्चन से पता है कि भाई 21 मीटर अगर इनके बीच की डिस्टेंस है तो पक्का है कि ए बी को कैच कर लेगा। तो हमने माना कि ए बी को कैच कर लेगा। हालांकि अगर ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे होते तो हमको बिल्कुल पिछले तरीके से पता करना होता कि ए बी को कैच कब कैसे करेगा। पहले हम देखते कि वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है। जब 25 निकल आती तो हम कहते कि ठीक 25 पे वेलोसिटी ए की 0 होगी, लेकिन ए और बी के बीच की इनिशियल डिस्टेंस सिर्फ 21 है। तो बी के फ्रेम के हिसाब से ये रुका हुआ है, ये 25 मीटर पर जाकर रुकेगा, तो ऑब्वियसली ये इसे पकड़ लेगा। और जब पकड़ लेगा तो 21 मीटर पर इसको कितनी देर लगेगी चलने में, 21 मीटर कितनी देर में चलेगा। भाई ये रुका हुआ है, बी के फ्रेम में ये चल रहा है, तो 21 मीटर बाद ये इसको पकड़ लेगा। तो हम बी के फ्रेम से टाइम उठा लेंगे, क्योंकि ये एक रुका एक चल रहा है। इजी सिचुएशन, यहाँ से टाइम कैलकुलेट करके उठा लेंगे और फिर उस टाइम को लेकर ग्राउंड फ्रेम में लौट जाएंगे और रियल वैल्यूज़ निकाल लेंगे। टाइम दोनों में सेम रहेगा, इसी हालत का फ़ायदा हम उठाएंगे। तो यहाँ से टाइम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इतनी, एक्सेलरेशन इतना, डिस्टेंस 21। तो हमने कहा कि अब हम टाइम निकालने के लिए s इज़ इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का यूज़ करेंगे। और अगर इसका यूज़ करेंगे तो s कितना 21, b के फ्रेम में ये रुका है, ये अगर 21 मीटर तय कर ले तो ये इसे पकड़ लेगा। कितनी देर में पकड़ेगा वो पता करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ किया, s21। वेलोसिटी ऑफ ए, यहाँ पर क्योंकि हम बी के फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, यानी रिलेटिव वेलोसिटी रखनी है 10, रिलेटिव एक्सीलरेशन रखना है -2। बी के फ्रेम में टाइम पता कर रहे हैं, ये उठाकर फिर जब ग्राउंड फ्रेम में पहुँचेंगे तब इन वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो 21, ये 10, टी पता करना है, हाफ -2 टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो टी की दो वैल्यूज़ आएंगी, 3 सेकेंड और 7 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जब भागेगा तो पहले वो इसको कैच करेगा 3 सेकेंड के बाद, और उसके बाद 7 सेकेंड के बाद फिर से कैच करेगा। क्यों? अब हम टाइम 3 और 7 उठाते हैं और वापस ग्राउंड फ्रेम में आ जाते हैं। अब ग्राउंड फ्रेम में जो आदमी, यानी कि तुम जब ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि पहले इसकी रफ्तार ज़्यादा थी, एक्सेलरेशन कम था, इसकी रफ्तार कम थी, एक्सेलरेशन ज़्यादा था।
तो पहले ये भागता है और भागकर इसको पकड़ता है। कितने टाइम के बाद? 3 सेकंड के बाद। उसके बाद ये इसको क्रॉस कर जाता है, लेकिन क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो इसकी रफ़्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, जबकि इसकी रफ़्तार ज़्यादा रेट से बढ़ रही है, जबकि इसकी रफ़्तार कम रेट से बढ़ रही है। तो पहले ये पकड़ता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ते बढ़ते ए की वेलोसिटी को क्रॉस कर जाती है। तो पहले ए आगे जाता है और उसके बाद बी तेज होकर ए को फिर से क्रॉस करता है। तो पहले ए बी को क्रॉस करता है और उसके बाद बी की रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बी ए को फिर से एक बार क्रॉस करता है, यानी ए और बी 2 बार मिलते हैं, एक बार 3 सेकंड के बाद, एक बार 7 सेकंड के बाद। तो ग्राउंड फ्रेम में एक्चुअल सिचुएशन ये है, लेकिन अगर आप इसको बी के फ्रेम में सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। टाइम यहाँ से उठा लो, ग्राउंड फ्रेम में जाओ और ग्राउंड फ्रेम में आप पता कर लो कि 3 सेकंड में असल में ए कितनी डिस्टेंस चलेगा। 3 सेकंड में जब आप ग्राउंड फ्रेम में पता करोगे तो आप ग्राउंड फ्रेम की वेलोसिटीज़ को उठाओगे। उसका u20 है, उसका जो टाइम है 3 सेकंड है, प्लस अब वो डी एक्सेलरेट तो वो बी के ऑब्जर्वर के लिए कर रहा था ना, असल में तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा है 2 से और ये भी एक्सेलरेट कर रहा है 4 से। तो टाइम यहाँ से उठाकर जब यहाँ आए तो अब जब तुम्हें ये पता करना हो कि ए कितनी देर बाद इसको कितने दूरी के बाद इसको कैच करेगा, तो दूरी फ्रेम पे डिपेंड करती है। तो टाइम फ्रेम पे नहीं डिपेंड करता है, इसलिए टाइम इजी फ्रेम से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन जब डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो वापस यहाँ आना पड़ेगा। तो s इज़ इक्वल टू, अब जो रियल वैल्यूज़ हैं वो रखी तो पता चलेगा कि 69 मीटर के बाद ए बी को पकड़ेगा। और उसके बाद फिर पता करना है कि 7 सेकंड्स के बाद ए कितनी दूर चल चुका होगा स्टार्टिंग पॉइंट से। 7 सेकंड्स के बाद ए 189 मीटर आगे चल चुका होगा। तो एक बार ए 69 मीटर के बाद बी को पकड़ेगा और फिर बी स्टार्टिंग पॉइंट से 189 मीटर जब ए चल चुका होगा, ए जब 189 मीटर चल चुका होगा तो बी क्योंकि उसकी रफ्तार बढ़ चुकी होगी तो एक बार फिर से ए को क्रॉस करेगा। तो पहली बार ए क्रॉस करेगा बी को, दूसरी बार बी क्रॉस करेगा ए को। एक्सप्लेनेशन को हो सकता है कि 2-3 बार सुनना पड़े, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपको इस तरह के सभी क्वेश्चंस के लिए कॉन्फिडेंस दे देगा कि आप कर सकते हैं। तो पॉज करके नोट कर लो। और ये आपके रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक ख़त्म हो रहा है। मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए सॉल्यूशन इसमें से देखकर नहीं करना, 2019 का सवाल है। क्वेश्चन नोट करके ट्राई करो, सॉल्यूशन मैं दे रही हूँ। नहीं आए तब या कर चुको जब सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्रॉस चेक करना।